में तो रहेगा ही, क्योंकि फोरेंसिक में स्पेशलाइज मुकुल जी हैं, गिने चुने हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं। हाँ, और बस ज्यादा है नहीं लोग। जी। Anyway, very good afternoon. I welcome all of you once again in the series of webinar. Today we have a webinar on forensic audit methods, importance and uses for chartered accountants. And on this subject, we have our Mukul Agrawal ji, a very learned and experienced chartered accountant. He is a managing partner in J Mandal and Company. He is BCom in 2000, CA 2003, MBA 2005, CAFIP 2015, 2015, CHFI 2019. He is the member of Institute of Chartered Accountants of India, member of International Institute of Certified Forensic Investigation Professional. He has been awarded MSME Excellence Award from Indian Government for contribution in forensic and fraud investigation. He is a member of Global Audit Committee of Impact International, world 15th largest association of independent accounting firms. He has completed certificate course on forensic accounting and fraud detection from ICI. He is visiting faculty with CAG of India on IFRS. He is the visiting faculty with Central Bureau of Investigation on banking fraud and forensic audit. He is a member of National Council on Corporate Fraud and Internal Audit of ASSOCHAM. He is the visiting faculty with the Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs on corporate frauds. He is also visiting faculty with Board of Studies ICI. He is the independent director on board of Bright Solar Renewable Energy Private Limited. He is the group of Mahindra and Mahindra Group Company. He is a member of research group of ICI on IFRS. He is the manager of E&Y Global for infrastructure sector. This is the brief profile of our Mukulji. And Mukulji is also actively involved with the ICI as a speaker on its various seminars on IFRS, forensic, etc. He has worked with E&Y Middle East for 4 years and from January 2004 till October 2009. And he has done his articleship from SS Kotari Mehta and Company. This is the brief profile of our today's speaker. With this, I once again welcome Mukulji and over to you, sir. Mukulji. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. And thanks a lot for giving me opportunity to share my views on forensic audit. सर, सबसे पहले अभी डिस्कस हो रहा था कि प्रैक्टिसिंग सीएज हैं, फॉरेंसिक बहुत एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हैं. बट द हार्ड फैक्ट टुडे इज दैट हम जो नॉर्मल ऑडिट भी करते हैं उसमें भी हमारे ऊपर जो लायबिलिटीज हैं, जो हम नॉर्मल बैलेंस शीट साइन करते हैं, तो उसके अंदर भी फॉरेंसिक थ्योरम्स अब हमें लगाने की जरूरत पड़ने स्टार्ट हो गई है. और अगर हम उसे यूज कर लेंगे तो हम अपने रिस्क को बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं. सेकेंड, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स में भी अब हमें, जो हम पहले अपने ऑडिट प्रोग्राम्स और ऑडिट चेकलिस्ट बनाते थे, उसमें बहुत कुछ फॉरेंसिक एंगल से भी हमें उसमें ट्वीकिंग और चेंज करना पड़ता है और हमें करना चाहिए टू मिटिगेट आवर रिस्क. और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी आप सब लोग टैक्स प्रोफेशनल्स हैं. आई एम नॉट डूइंग टैक्स एट ऑल नाउ, सो आई एम नॉट इनटू टैक्स टोटली. तो जो मुझे समझ आता है टैक्स में ये कि अब ई असेसमेंट्स हो गई है, फेसलेस असेसमेंट्स हो गई है, आपकी अपील्स भी फेसलेस होने जा रही हैं. सो द काइंड ऑफ exposure or the kind of scope in tax, I think is now getting limited. राजेश, जगजीत जी, अशोक जी, आप लोग ज्यादा बता पाएंगे कि ये मेरा जो व्यूज है इज करेक्ट और नॉट. यस सर, करेक्ट सर. तो अगर वहां पे मेरे स्कोप कम हो रहा है या स्कोप लिमिटेड हो गया है, तो विच अदर एरिया वी हैव अ स्कोप. फ्रैंकली, wherever if there is a human being, there is a greed and there is a fraud. जब तक ह्यूमन बीइंग रहेगा तब तक ग्रीड भी होगी, फ्रॉड भी रहेगा, और जब तक फ्रॉड रहेगा तो फॉरेंसिक रहेगा ही रहेगा. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉरेंसिक का स्कोप अब बढ़ने लगा है.
एंड टेक माय वर्ड्स, बिग फोर भी फॉरेंसिक से बाहर हो जाएगी। उसके दो मेजर रीजन है। पहला, फॉरेंसिक में कंक्लूसिव रिपोर्ट चाहिए होती है, जो सारे बैंक्स या ईओडब्ल्यू या ईडी या सीबीआई या सेबी सब मांगते हैं। बिग फोर कभी भी कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं देती है। आई कैन से ऑन द स्टेज इटसेल्फ, बिग फोर कंक्लूसिव रिपोर्ट ही नहीं देती है। द रीजन, द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट, 100% कंक्लूसिव एविडेंस कभी मिल नहीं सकता, और अगर 100% मिल नहीं सकता, we as a medium practitioners और medium running a medium firms, हम लोग तब भी एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दे सकते हैं जो हमें दिख रहा है। बिग फोर जब तक डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी वो देगा नहीं, और 90% वो होती नहीं है। सेकेंड, स्कोप में आज जितना बिग फोर, जितना सीए दिमाग लगा के फॉरेंसिक फ्रॉड निकाल सकते हैं, उतना आप एक्सपेक्ट करो कि एक एम्प्लॉय ऑफ बिग फोर करेगा, वो नहीं करेगा। ही इज मच मोर टुवर्ड्स द कि यार मुझे ये चेकलिस्ट पूरी करनी है, ये मुझे काम करना है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर फॉर मी। आई हैव बीन पार्ट ऑफ द बिग फोर ऑल्सो, आई वॉज विद EY, so I can say it with much more conviction कि whatever I am saying, it is the fact, what I have seen, I have experienced, right? तो अब इसमें आ जाते हैं हम फॉरेंसिक में। तो इसमें मैं ऐड भी करूंगा कि क्यों, कहाँ इंपॉर्टेंस है और कैसे इंपॉर्टेंट हम नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है। सेकेंड, कहाँ पे एज अ नॉर्मल प्रैक्टिशनर फॉरेंसिक एज ए फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी स्कोप बहुत ज्यादा है, हम इजीली कर सकते हैं। सबको स्लाइड दिख रही है? यस यस जी। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ फॉरेंसिक्स में। सबसे पहले एक नॉर्मल सर्वे ले लेते हैं कि CFE इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉरेंसिक फील्ड, इट इज बेस्ड आउट ऑफ US। तो वो हर एनुअली एक सर्वे रिजल्ट्स निकालती है, जिससे हमें एज अ फ्रॉड प्रैक्टिशनर हमें आइडिया रहता है कि क्या क्या है। Organization losing as much as 5% of the annual turnover as the result of fraud. The total loss caused by cases in ACFE study, ACFE Association of Certified Fraud Examiners, exceeded $6.3 billion and average loss per case is $2.7 million. आज के टाइम पे जहाँ पे हमें पता है कि हमारी टॉप लाइन जो हमारे क्लाइंट्स की है वो एक लेवल पे फ्रीज हो चुकी है या सैचुरेट हो चुकी है, तो जो आप अगर आपको बॉटम लाइन ईयर टू ईयर इंक्रीज करनी है तो आपको ये फ्रॉड्स और ये लॉसेस रोकने पड़ेंगे। High percentage of frauds are committed by senior management and executives because they only have the powers with them. Asset misappropriation is the most common fraud, but with the smallest median loss of $1 lakh, whereas financial fraud, जो हम फाइनेंशियल फॉरेंसिक की बात करते हैं, जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा स्कोप है, इसमें मीडियन लॉस इज $9,54,000। तो बहुत, मतलब अगर हम एक कंपनी में फ्रॉड रोक बचा पाते हैं फ्रॉड से कंपनी को इंटरनल ऑडिट में या स्टैट्यूटरी ऑडिट में, वी आर गिविंग अ वेरी गुड वैल्यू एड टू द कंपनी। मैं आज के सेशन पे जो बेसिकली कवर करूंगा, एक तो फ्रॉड, फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फ्रॉड, डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक ऑडिट एंड नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्कोप ऑफ वेरियस फॉरेंसिक ऑडिट्स। फॉरेंसिक ऑडिट्स हमें जिससे मिलते हैं, हमें बैंक से मिलते हैं, हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकते हैं, हमें EOW से मिलते हैं, हमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से मिलते हैं। तो सबके फॉरेंसिक ऑडिट में क्या स्कोप है, क्या डिफरेंस है, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड अकाउंटेंट्स इन टुडेज टाइम। फिर कुछ थ्योरम्स है जो हम नॉर्मल ऑडिट में भी यूज कर सकते हैं, वी शुड यूज, जो हम एक्सेल पे काम करके यूज कर सकते हैं। वी ऑल आर यूजिंग एक्सेल, तो हम अगर एक्सेल में भी उन थ्योरम्स का यूज करके, अपने सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं, वाउचिंग करते हैं, रैंडम वाउचिंग करते हैं, उसमें भी अगर इसको यूज करें, वी वुड बी द रिस्क वुड बी मिटिगेटेड टू द लेवल ऑफ 50 to 60%। मींस कि अगर कोई फ्रॉड होगा तो 50 to 60% चांसेस हैं कि हम उस फ्रॉड को निकाल पाएंगे, which in my opinion is a very big probability।
हम 10% पे खेल जाते हैं, जो हम रैंडम वाउचर हम 10% 15% पे करते हैं, 50-60% तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। फ्रॉड का एक बेसिक डेफिनेशन कि फ्रॉड will always take place wherever there is an opportunity और फ्रॉड प्रिवेंशन सिर्फ टॉप लेवल से कंट्रोल की जा सकती है। अगर टॉप लेवल पे लोग खुद फ्रॉड कर रहे हैं तो फ्रॉड प्रिवेंशन उस कंपनी में पॉसिबल, बहुत मिनिमम चांस है कि पॉसिबल हो सकता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें बेसिक चीजें हैं: एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट और अब्यूज ऑफ पोजीशन by any person or any other person with a connivance, intent to deceive, to gain undue advantage or injure interest, whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss. तो जो कंपनी से कहना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी को रॉन्गफुल गेन हुआ या कंपनी को रॉन्गफुल लॉस हुआ देन ओनली इट वुड बी फ्रॉड। फ्रॉड वो हर केस में फ्रॉड है, सिर्फ उसका इंटेंट, एक्ट, ओमिशन, उसका इंटेंट क्या है और वो क्या करता है। अगर वो अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है तो फ्रॉड है। और फ्रॉड के केस में फर्स्ट थिंग, हम वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वी हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट देयर इज अ फ्रॉड हैपेंड इन द कंपनी। एंड अगर हम नहीं करते तो हमारे ऊपर 1 लाख से 25 लाख तक का हमारे ऊपर वो है, क्या कहते हैं, पेनल्टी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फीस विच वी आर अर्निंग। तो इफ वी से कि हम छोटी कंपनी का कर रहे हैं और छोटी कंपनी में हमारी फीस ही 50,000 है, वी कैन नॉट टेक दैट प्ली कि यार हमारी तो फीस कुछ नहीं है। छोटी या बड़ी, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। और एज पर सेक्शन 447 पेनल्टी ऑफ फ्रॉड, देयर इज imprisonment फॉर द director or the key personnel of the company who is involved in the fraud from 6 months to 10 years and fine up to 3 times of the amount involved. It is for them. And for auditors like us, 1 लाख से 25 लाख तक का हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। और एंड वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट लेटर देन 60 days। अगर हमें कहीं पे भी लगता है कि फ्रॉड हो सकता है, वी हैव टू रिपोर्ट इट। अब इस केस में फ्रॉड का आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल, लेकिन जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम फॉरेंसिक कैसे करते हैं, या आज कोई भी नया प्रैक्टिशनर फॉरेंसिक में घुसना चाहेगा तो फॉरेंसिक एक्चुअली है क्या। सी, फॉरेंसिक इज नथिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बंदा जो इसने फ्रॉड करा है वो क्या सोचता है और कैसे कर सकता है। जिसने करा है, ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, वो कंपनी में बैठा है, वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। दिस इज जस्ट द एक्सपीरियंस। आज आई एम डूइंग दिस फॉरेंसिक ऑडिट फॉर लास्ट 8 years नाउ। तो जो 2012 में मैंने जब स्टार्ट करा था, तब जो मेरा माइंडसेट था, जो आज जो मेरा माइंडसेट इज टोटली डिफरेंट। इट इज ओनली ड्यू टू द एक्सपीरियंस। सो इन फॉरेंसिक टर्म्स, इन फ्रॉड फॉरेंसिक ऑडिट टर्म्स, हम फ्रॉड को 3 फ्रॉड ट्रायंगल में बोलते हैं कि 3 रीजन से फ्रॉड कोई बंदा कर सकता है। पहला, प्रेशर, लाइक अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी इज देयर और उसके ऊपर प्रेशर है कि आईपीओ लिस्ट कराना है। उसके ऊपर प्रेशर है कि उसकी जो इंसेंटिव है वो प्रॉफिट लिंक्ड है और उसे पैसा चाहिए, तो प्रेशर है उसके ऊपर। तो प्रेशर के केस में वो फ्रॉड करेगा। तो व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज कि अगर आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं और आपको लगता है कि प्रेशर उस किसी की पर्सन के ऊपर प्रेशर है, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, ऑडिट चेकलिस्ट को उस हिसाब से ट्वीट कर दीजिए। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में आपको कुछ और, आप समझ लीजिए 10 वाउचर्स चेक करते हैं या 10% चेक करते हैं और आपको प्रेशर दिख जाता है, तो 10% से 20-25% तक पहुंच जाइए। एंड दिस वर्किंग पेपर, इफ यू कीप द वर्किंग पेपर लाइक दिस कि हमने प्रेशर देखा और हमने ऐसा करा, अभी एसएफआई और सीबीआई सीएस को बुला रहे हैं और आपके अगर ये वर्किंग पेपर्स हैं तो नो बडी कैन क्वेश्चन यू, यू वुड बी सेव्ड फुली कि आपने अपना काम करा। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं जी उस मुझे तो प्रेशर, वो सीधा पूछते हैं आपकी, आपको प्रेशर दिख रहा था कि उसको प्रेशर है, उस बंदे को पर कोई कुछ दिखा, आप कहते हो जी मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं तो नॉर्मल कर रहा था, देन समवेयर वी कैन बी टेकन फॉर अ राइड इन दैट केस। सेकेंड, रैशनलाइजेशन की कोई डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉई है
और उसे खुंदक है कि मुझे बोनस नहीं मिला या मुझे पॉलिटिक्स के चक्कर में मेरा प्रमोशन नहीं मिला, तो उसका फ्रॉड करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो इन दैट केस फ्रॉड वो कर सकता है, तो उस हिसाब से हमें और उससे रिलेटेड चीजों को और ध्यान से चेक करना चाहिए। तीसरा है अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी में होता है कि हमने देखा कि यार एक बंदे के पास पावर सारी है कि वो खुद ही वाउचर बना रहे हैं, खुद ही उस वाउचर को अप्रूव कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी है, तो हमें उस एंगल से भी अपने ऑडिट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस फ्रॉड ट्रायंगल बेसिकली हमें तीनों चीजों को देखते हुए अपने ये हम ऑडिट स्टार्ट होने के टाइम पे ही देख के हम अपने ऑडिट प्रोग्राम को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, एंड देन वी वुड डू द ऑडिट। एंड आई एम सेइंग अबाउट नॉर्मल ऑडिट। जब हम फॉरेंसिक के लिए जाते हैं तब तो हम ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि चेक करना कि डिस्कंटिन्यूड एम्प्लॉय कौन है, या किस एम्प्लॉय का प्रॉफिट से कोई लिंक्ड है या कुछ प्रेशर है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। नेपाल में अभी नहीं, आज से मे बी 5-10 years बैक, अगर वहाँ के जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं उनका ये होता था कि अगर उन्हें कोई भी एम्प्लॉय, नेपाली एम्प्लॉय कैसीनो में मिल गया तो वो उस एम्प्लॉय को नेक्स्ट डे ही फायर कर देते थे या एक दो चांस देके फायर कर देते थे, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि जो बंदा कैसीनो जा रहा है, ठीक है, आज वो बहुत ऑनेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि बाद में जाके कैसीनो में उससे नुकसान हो जाए और वो फिर कंपनी के साथ ही फ्रॉड कर दे, विच इज अ वेरी बिग व्हाट यू से पॉसिबिलिटी। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी, फ्रॉड और रैशनलाइजेशन हमें सब कुछ देखना जरूरी है। अब इसमें जस्ट की अंडरस्टैंडिंग आज तक एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा फ्रॉड्स इंक्रीज प्रेशर की वजह से हुए हैं, अपॉर्चुनिटी की वजह से उससे कम, और रैशनलाइजेशन डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज की वजह से सबसे कम फ्रॉड हुए हैं। बट दिस इज जस्ट द एक्सपीरियंस और द डेटा which has happened till now. So it is not that it is a thumb rule, but yes, हमें एक आइडिया मिलता है। जब हम एज अ ऑडिट करने जाते हैं तो हमें फ्रॉड का बेसिक मैं आपको आइडिया देता हूँ, जहां से सीए एज अ सीए वी शुड बी कंसर्न विद द ऑक्यूपेशनल फ्रॉड। अब ऑक्यूपेशनल फ्रॉड क्या होता है? द फ्रॉड विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। तो हम जब ऑडिट करते हैं तो हमारे जो फाइनेंस रिलेटेड लोग हैं, क्या क्या फ्रॉड हो सकता है? करप्शन हो सकता है, करप्शन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्राइबरी, इलीगल ग्रेचुइटीज, इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन, इकोनॉमिक, और फिर एसेट मिसअप्रोप्रिएशन, कैश हो गया या इन्वेंट्रीज, उसका एसेट मिसअप्रोप्रिएशन हो सकता है। यह सबसे बड़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, विच वी ऑल अंडरस्टैंड कि टाइमिंग डिफरेंस, अंडरस्टेटेड रेवेन्यूज, फिक्टिशियस रेवेन्यूज, कंसील्ड लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, इम्प्रॉपर एसेट वैल्यूएशंस। और जब से इंड एस आया है तो एसेट वैल्यूएशन बहुत एक lucrative area हो गया to manipulate the balance sheet and the numbers. जो basic types of financial statement frauds: fictitious sales, improper expense recognition, incorrect asset valuation, hidden liabilities, and unsuitable disclosures. So these are the basic 5 types of financial statement frauds जो होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय एम्बेजलमेंट फ्रॉड बाय एम्प्लॉय एम्बेजलमेंट इज द बिगेस्ट टाइप ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड बाय अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम या फोन पे, अभी फोन पे फ्रॉड हुआ है काफी बड़ा, तो दीज आर द फ्रॉड बाय अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज। फ्रॉड बाय वेंडर्स इन द कनेवेंस विद द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, फाइनेंशियल्स आर गेटिंग मैनिपुलेटेड। एंड द लास्ट इज द करप्शन, कि किसी को पेमेंट कर दी। अब यूएस हैज कम अप विद द सॉक्स रिव्यूज, एफसीपीए, द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, और अगर किसी यूएस की किसी कंपनी ने इंडिया में भी अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कहीं पे भी ब्राइबरी दी और यूएस कंपनी को पता चल गया, दे हैव टू डिस्क्लोज इट टू द एससीसी एंड दे वुड टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल इन इंडिया, whoever knows the thing. So it is, they are very strict with this, and same is the case is Anti-Bribery Act in UK. So
all the countries are getting very much progressive on this fraud side और बहुत serious हो रही है, and sooner than later India is also getting serious with it. और हमारे अभी मैं सुन रहा था हमारे जो नए कोड ऑफ एथिक्स है उसमें भी इसका इम्पैक्ट लिया गया है. So we have to be very clear, and the institute is also playing very seriously on it. Again, survey results just that 80% of the fraudsters face some form of internal discipline from the victim organization. ये फैक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी को ऑडिट करने जा रहे हैं और हमें पता चलता है कि किसी के अगेंस्ट इंटरनली एक्शन लिया गया है, be very careful with that person and the whatever he is doing in the company. 42% of occupational fraudsters were living beyond their means. आज के दिन जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो एवरीबॉडी इज ऑन फेसबुक, एवरीबॉडी इज ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, टिंडर, तो इन सब पे हम यूज करते हैं. मैं आपको एक केस बताता हूँ. हुआ क्या था, एक ज्वेलरी ग्रुप का फ्रॉड का इंटरनल फ्रॉड का हम केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. In that particular case, we were not able to crack it fully. When I say crack it fully, मुझे ये पता चल गया कि fraud हुआ. Fraud was somewhere around 500 crores to 600 crores. लेकिन उसमें सीनियर जो रीजनल सेल्स मैनेजर था वो इन्वॉल्व था, वो हमें क्लियर था. बट एक चीज हम लोग भी मानते थे कि एक रीजनल सेल्स मैनेजर की इतनी कैपेसिटी या इतनी कैपेबिलिटी, इतनी औकात नहीं होती है कि वो इतना बड़ा फ्रॉड कर दे. एंड जस्ट टू सी कि अब कौन सीनियर मैनेजमेंट से बंदा इन्वॉल्व है उसके साथ, हम लोग सोशल प्रोफाइलिंग में चले गए. अब सोशल प्रोफाइलिंग क्या होती है कि हम लोगों ने ये चेक करा कि फेसबुक, टिंडर, उसकी फैमिली की, कि कहीं से हमें कुछ क्लू मिले और हम इसे केस को क्रैक कर पाए. एंड यस, ओनली ड्यू टू सोशल प्रोफाइलिंग और फेसबुक, टिंडर, ट्विटर हमने केस क्रैक कर दिया. तो आज के दिन जो हम बोलते हैं या बात करते हैं कि फेसबुक वगैरह, तो बी वेरी केयरफुल. आपको वहां से भी बहुत कुछ आइडिया लग सकता है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए या फ्रॉड का केस क्रैक करने के लिए. देन 26% ऑफ द ऑक्यूपेशनल फ्रॉडस्टर्स आर एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. जैसे मैं नेपाल वाला केस लिया, कैसीनो में लोग हार जाते हैं, देन कहाँ से पैसा लें, तो वो फ्रॉड करते हैं कंपनी के अंदर. 46% of the victim organizations declined to refer cases to law enforcement because internal discipline was sufficient. अगर आपको कोई केस मिलता है, कुछ डाउट होता है और प्रमोटर कहते हैं यार ये तो मेरा बंदा है, पुराना 20 साल से मेरे साथ है, सबसे पहले उसे इन्वेस्टिगेट कर लेना, क्योंकि जहां 20 साल मेरे साथ है तो फॉर श्योर वो कर सकता है, बिकॉज ही हैज ऑल द थिंग्स अंडर हिज माइंड. फिर उसके बाद फ्रॉड के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? टेक्नोलॉजी, पीपल, पॉलिसीज, प्रोसेसेस. अभी एक रिसेंटली एक लिस्टेड कंपनी में क्या हुआ था, दैट वो लोग 2 बार टेंडर हार गए, या 2 या 3 बार हार गए होंगे, एंड दे डाउटेड कि यार कहीं ना कहीं हमारा डेटा हमारे कंपटीटर के पास जा रहा है और हम लोग उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, हमें नहीं पता किसने भेज दिया, लेकिन उस वजह से हमने वो पर्टिकुलर टेंडर मिस कर दिया. सो हमें नहीं पता था कि एज ए इन्वेस्टिगेटर कि यार ये कहाँ से क्या पता चल सकता है. सो वी स्टार्टेड विद द नेटवर्क फॉरेंसिक. हमने उनके नेटवर्क को चेक करा कि बिकॉज ऑल द कंप्यूटर, आपके सारे लॉग्स बनते हैं नेटवर्क में, सारे लॉग्स बनते हैं कि किस आईपी एड्रेस से किसने क्या डेटा डाउनलोड करा. सो वी कैन क्रैक दैट केस फ्रॉम दैट साइड. सो व्हाट वी केम टू नो कि उस पर्टिकुलर केस में हमने देखा यार जो डेटा जिन लोगों के पास होना चाहिए उन्हीं के पास है, लेकिन एक और आईपी एड्रेस से वो डेटा डाउनलोड हो गया था, एंड वो डेटा डाउनलोड हुआ था टेंडर के 2 दिन पहले. बस हमने डेटा डाउनलोड आईपी एड्रेस पता चला, हमने उसे मैप करा कि यार ये किसका था, तो पता चला एचआर की एक लड़की का था. सबसे अच्छी चीज, फिर हमने क्लाइंट को बोला यार ये एचआर की लड़की ने करा है, उसने डेटा निकाला. देन द क्लाइंट सेड यार एचआर की लड़की ने करा, चलो उसे फायर करते हैं, चलो हमारा काम हो गया. देन वी सेड कि नहीं, हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है कि क्यों करो, कैसे करा. वी फाइंड आउट, वी डिड द ईमेल फॉरेंसिक. ईमेल फॉरेंसिक में हमने उस लड़की का ईमेल्स चेक करे सारे,
उसमें से डेटा निकाला, पता चला उसका बॉयफ्रेंड कंप्यूटर कंपनी में मार्केटिंग में था और उसने अपने सारा डेटा अपने बॉयफ्रेंड को वहां भेजा था एंड शी यूज द ईमेल। ईमेल उसने डिलीट भी कर दी बट यस ऑल द ईमेल इज इजली ट्रेसेबल और हम आराम से निकाल सकते हैं। गूगल हमें सारे मेल्स दे देता है, याहू हमें सारे मेल्स दे देता है, और अगर आपने अपने लैपटॉप से करा है तो लैपटॉप में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है। इवन फॉर्मेट कर दो लैपटॉप को तो भी डेटा डिलीट नहीं होता है। सो वी गॉट दैट ईमेल आउट ऑफ इट, और हमें वहां से ये क्लियर हो गया कि मार्केटिंग का बंदा था, उसे इंसेंटिव चाहिए थे, उसने उठा के ये इंफॉर्मेशन दी और वो टेंडर वो कंपनी जीत गई। तो इस केस में हम टेक्नोलॉजी पे गए, पीपल पे दूसरे नंबर पे गए। और किसी केस में आता है कि कंपनी कहती है यार मुझे इस परचेज मैनेजर पे या सीएफओ पे डाउट है, तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी से स्टार्ट नहीं करते, हम पीपल से स्टार्ट करते हैं अपना ऑडिट कि यार ये कैसे इस बंदे ने क्या करा होगा, क्यों करा होगा। और अगर हमें दोनों ही नहीं पता चलता तो हम पॉलिसीज और प्रोसेसेस देखते हैं। अगर कोई कहता है कि परचेज प्रोसेस चेक कर लो कहीं उसमें कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, या वो कहते हैं जी इसमें फ्रॉड हो रहा है एक बार देख लो, तो हम पॉलिसीज देखते हैं सबसे पहले। सो देयर इज नो थंब रूल कि किसको पहले करना है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। एंड द ब्यूटी ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट इज दैट नॉर्मल ऑडिट में हम ऑडिट रिपोर्ट कट पेस्ट कर सकते हैं, वी गेट द गाइडेंस नोट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट, ईच ऑडिट, द स्कोप एज वेल एज द रिपोर्ट इज टोटली डिफरेंट। You cannot have two reports, similar reports in forensic audit. हाँ, heading same होगी, limitations, executive summary, summary, observations. Other than that, nothing is same. सबका स्कोप, सबकी चीजें अलग है। ईओडब्ल्यू अगर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हमें काम देता है तो उसका स्कोप अलग है, हमें बैंक काम देता है तो उसका स्कोप अलग है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट दैट वे। जस्ट अगेन सर्वे, बिकॉज सी फॉरेंसिक या फ्रॉड्स जितना हम पुरानी चीजों को समझेंगे उतना ही हम अपने आप को और ज्यादा उसके लिए ट्यून कर सकते हैं। कंट्रोल वीकनेस दैट कंट्रीब्यूटेड टू फ्रॉड्स ग्लोबली, जो मेजर चीजें थी जिसके वजह से फ्रॉड्स होते थे, द बिगेस्ट यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड इज द लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो हम लोग क्या करते हैं, जो हम आईएफसी करते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, that is to cover this particular aspect, the lack of internal controls, which again the Companies Act have taken it कि हमें IFC के रिपोर्ट चाहिए, हमें सब चाहिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल्स ऑन फाइनेंशियल ICFR चाहिए, तो वो इस चीज को कवर करता है। तो हम फ्रॉड को काफी हद तक मिटिगेट करते हैं उस केस में। लैक ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, ओवरराइड ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स, पुअर टोन एट द टॉप, lack of competent person in oversight roles, others, lack of independent checks and audits, lack of employee fraud education. So these are few of the areas कि जिसके वजह से frauds होते हैं, and the biggest is lack of internal controls. Basic thumb rules हम कहते हैं इसे, कि ये चीज तो हर forensic auditor को मान लेनी चाहिए, मतलब समझ लेनी चाहिए, that a fraud cannot be done by a single person. एक बंदा कंपनी में कभी फ्रॉड नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। फ्रॉड अगर कोई कर सकता है तो 2-3 बंदे मिलके कर सकते हैं, एक बंदा कभी नहीं कर सकता। सेकेंड, फ्रॉड कैन ऑल्सो पेनिट्रेट थ्रू गन पाउडर इफेक्ट। व्हाट इज गन पाउडर इफेक्ट? हम जो गन पाउडर इफेक्ट है कि छोटे छोटे अमाउंट्स को अगर हम निगलेक्ट कर देते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो छोटे अमाउंट आइसोलेशन में छोटे लगते हैं लेकिन वो टोटल में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। एक केस में बताता हूँ जो हमने इसके वजह से निकाला और फ्रॉड हमने डिटेक्ट करा, एंड दैट वाज डन एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इट वाज नॉट डन एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर, इट वाज ओनली अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर वी वर साइनिंग वन बैलेंस शीट। अब उस केस में हम करते क्या थे कि जो हमारे फ्रेट के बिल्स आते थे, अब ट्रांसपोर्ट यूज होती है, फ्रेट यूज होता है, उसके बिल्स आते हैं, तो उसकी एक स्लिप आती है, येलो कलर की स्लिप होती है नॉर्मली, कुछ पिंक करते हैं कुछ येलो करते हैं। तो येलो कलर की कई स्लिप्स होती हैं, उसके आगे एक समरी लगी होती है, समरी में टोटल होता है, हम उस समरी से वाउचर को चेक करते हैं और कहते हैं वाउचिंग हो गई। तो इन वन ऑफ द केस व्हाट हैपेंड कि टीम ने कहा यार चलो, हमने ये 2012 में नया नया पढ़ा था, हमने कहा चलो इसे चेक करते हैं। इट इज द केस ऑफ 2013-14। हमने उसे चेक करना स्टार्ट करा, हमने कहा 3-4 तो हम फ्रेट के चेक कर मारते हैं
क्योंकि हम हमेशा समरी से टैली करते हैं। एंड व्हाट वी फाउंड आउट कि एक पर्टिकुलर फ्रेट के उसमें देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ समवेयर अराउंड 10 to 12,000 रुपीज। अब 12,000 रुपये था एक पर्टिकुलर वाउचर में। हमने कहा तो टीम ने कहा यार क्या करने की जरूरत है, लेकिन हमने उसको इन्वेस्टिगेट करा टू गेट अ एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी फाउंड आउट द टोटल अमाउंट इन्वॉल्व्ड ड्यू टू दैट फ्रॉड वाज अराउंड 3.2 करोड़। तो अगर मैं वो 12,000 को छोड़ देता, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करता, तो आई वुड नॉट हैव रीच्ड टू 3.2 करोड़। सो each and everything we have to look into it. And then तीसरी चीज, while checking fraud the whole circle should be complete. When I say whole circle, what does it mean? Whole circle means कि सबसे पहले fraud हुआ कैसे, what was the modus operandi, second किसने करा, क्यों करा, और वो जो पैसा निकाला अगर निकाला तो वो कहाँ है, और अगर नहीं निकाल पाया तो क्यों नहीं निकाल पाया, सो दैट कि आगे चल के तो कम से कम इस पर्टिकुलर रीजंस को हम वहां पे एड्रेस करते हैं और ये फ्रॉड वाली चीज, ये वाला एंगल एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए और ये ना हो कोई फ्रॉड। सो दीज आर द 3 बेसिक थंब रूल्स फॉर अ फोरेंसिक ऑडिटर। और ये तीनों चीज हमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हमें एज अ बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें फ्रॉड कुछ मिलता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी होके या इंटरनल ऑडिटर बन के, तो हमें ये तीनों चीज का ध्यान रख के उस accordingly we have to investigate or we have to move forward. अब फॉरेंसिक में मैं कहूंगा 2 टाइप के फॉरेंसिक मेजर फॉरेंसिक्स कहते हैं। फाइनेंशियल फॉरेंसिक, मैंने से फाइनेंशियल फॉरेंसिक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हम करते हैं फॉरेंसिक्स, हम डेटा देखते हैं, चेक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, दैट इज वन। एंड डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक इज बेसिकली laptop forensic, mobile forensic, network forensic and all the IT part of it, so digital part of it. अब डिजिटल में एक एग्जांपल लेता हूँ। हम लोग सारे फ्लाई करते हैं और हम फ्लाइट यूज करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो बोर्डिंग पास को सिर्फ नॉर्मल बोर्डिंग पास को एज इट इज थ्रो कर देते हैं? आई थिंक 90-95% हम बोर्डिंग पास को ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो उसके अंदर जो बारकोड होता है, उस बारकोड में ही आपका बहुत डेटा होता है। हमेशा वो उस बारकोड को या तो पर्टिकुलरली उस बारकोड को काट के फेंको या बोर्डिंग पास को फेंको ही मत, विच इज वेरी क्रिटिकल। आपका सारा डेटा बाहर चला जाता है। अगर किसी ने उस बारकोड को स्कैन करके उसमें से डेटा निकाल लिया तो आपका सारा डेटा मिल जाएगा उसे। और टुडे वी आर वेरी हैप्पी कि डिजिटल वर्ल्ड है, वी ऑल आर सिटिंग ऑन जूम, मीटिंग कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी serious and very much we have to take all the precautions so that our data is not mitigated. So data is very critical and it should not be mitigated. अब इसी में मैं एक चीज और बताता हूँ। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, जब हम क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट का ऑडिट कर रहे होते हैं, तो बैलेंस शीट हम लोग खुद बनाते हैं अपने ऑफिस में। और हम जब ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो हम लिखते हैं द बैलेंस शीट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। वी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग आवरसेल्व्स। इसी में केस हो चुका, क्लाइंट ने कहा जी मेरा तो ये पर्टिकुलर जीएसटी में हुआ है, रिसेंटली हुआ है। क्लाइंट ने कहा कि जी मेरा तो जीएसटी रिटर्न्स भी सीए देखता है और मेरा तो बैलेंस शीट भी वही बनाता है, अगर उसने गलत बनाई है तो उसे पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। उस केस में, एक केस में सीए पकड़ा भी गया, यस, बट उसके वर्किंग पेपर्स पूरे थे तो बच गया। सबसे इंपॉर्टेंट, एंगेजमेंट लेटर, वी हैव टू गेट आवर एंगेजमेंट लेटर साइन। चाहे हम छोटे से छोटा जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट भी नहीं कर रहे, जीएसटी डेटा के रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, एंगेजमेंट लेटर विद स्पेसिफिक स्कोप ऑफ वर्क हमारे पास होना चाहिए। जीएसटी बहुत क्रिटिकल हो गया, डिपार्टमेंट बहुत एग्रेसिव हो गया, वो पकड़ लेगा। और अगर हमारे पास एंगेजमेंट लेटर नहीं है तो क्लाइंट बहुत इजीली बोल सकते हैं जी सीए करता है, और जीएसटी भी देख लेगा किस आईपी एड्रेस से रिटर्न फाइल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारी।
डीएससी हर क्लाइंट के हमारे पास होते हैं। क्लाइंट कभी भी बोल देगा जी डीएससी तो उनके पास है, मेरा काम नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल। डीएससी भी आप लेते हो तो क्लाइंट से लिखवा के लो कि मैंने इस रीजन के लिए डीएससी लिया है और इस रीजन से मैं काम कर रहा हूँ, ताकि क्लाइंट कल के दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीजें आपके ऊपर ना डाल सके। अब हम थोड़ा समझते हैं व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट। सबसे पहले फॉरेंसिक अकाउंटिंग। Forensic accounting is basically a specialty practice area of accountancy where the engagement that result from actual or anticipated disputes. See, the basic language, forensic accounting is to prepare the accounts from whatever data is available. जैसे आपका इंश्योरेंस है, फायर लग जाती है, वो कहता है जी मेरे पास तो डेटा ही नहीं है, तो डेटा आप बैंक स्टेटमेंट्स में से और पब्लिक डोमेन में से या जीएसटी रिटर्न्स में से जहां से भी आप निकाल सकते हैं, उससे निकाल के जो आपने अकाउंटिंग करी, दैट इज अ फॉरेंसिक अकाउंटिंग जॉब। और उसको फिर ऑडिट करना। व्हाट इज फॉरेंसिक? फॉरेंसिक इज एविडेंस व्हिच इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो फॉरेंसिक ऑडिट इज टू ट्रैक द एविडेंस, टू गेट द एविडेंस व्हिच इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड फॉरेंसिक ऑडिटर को भी कोर्ट में एज ए एक्सपर्ट एविडेंस के लिए जाना पड़ता है। तो अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम नॉर्मल अकाउंटेंट और ऑडिटर कैन नॉट बी सेम। क्या ये सेम चीज इस पे भी एप्लीकेबल होती है कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट एंड फॉरेंसिक ऑडिटर कैन नॉट बी सेम? इस पे इंस्टीट्यूट हैज नॉट सेड एनीथिंग टिल नाउ, बट द फैक्ट इज फॉरेंसिक अकाउंटेंट एंड फॉरेंसिक ऑडिटर कैन बी सेम पर्सन। एक ही बंदा उस अकाउंट्स को बिल्ड कर सकता है, फिर उसको ऑडिट करके रिपोर्ट दे सकता है, बिकॉज बिल्ड करते हुए भी वो कहता है जी मैं ऑडिट कर रहा हूँ और एविडेंस निकाल रहा हूँ। सो इट इज पॉसिबल। And now why the forensic audit is different from other audits? Forensic audit is basically issue based or related to a specific problem. तो जब हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम, होता क्या, नॉर्मल ऑडिट में जाते हैं, हम कहते हैं बैलेंस शीट हमें ट्रू एंड फेयर सर्टिफाई करनी है या बताना है, व्यू देना है। फॉरेंसिक ऑडिट में जब हम जाते कहते हैं इस कंपनी में चोर है, उस चोर को पकड़ना है, तो हमारा डे 1 पे क्लियर होता है कि चोर है और चोर को पकड़ना है। लेकिन फॉरेंसिक नॉर्मल ऑडिट में हम कोई चोर नहीं होता, हमें किसी को स्पेसिफिकली पकड़ना नहीं होता। देन अब फॉरेंसिक ऑडिट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिव्यू, जब विच यू नॉर्मली डू कि फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिव्यू चेक करते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस, जिसमें हम लैपटॉप, ईमेल वगैरह क्लोन करते हैं, उसमें से डेटा निकालते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती हैं, जिसमें वी गो एज अ डिकॉय कस्टमर और डिकॉय वेंडर टू प्रूव आवर पॉइंट। डेटा माइनिंग एट एडवांस लेवल। See, the biggest mining tool which is easily available is Excel, and we have to do today, the data is humongous in all the companies, so we have to do the data mining और forensic में बहुत ज़्यादा। Then interviewing skills, we interview the fraudster also if required, and technical assistance भी हम लेते हैं, handwriting और specimen signature experts का। जो एक और मेजर बेसिक डिफरेंस है कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिल जाता है इन नॉर्मल ऑडिट तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इन फॉरेंसिक ऑडिट हम उस डॉक्यूमेंट की भी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। पता चला कि वो डॉक्यूमेंट ही अपने आप में फ्रॉड है। नॉर्मल ऑडिट में हम इतना डिटेल में नहीं चेक करते, हम कहते हैं यार ये हमें डॉक्यूमेंट मिला तो ये ठीक होगा, एंड हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में लिखवाते हैं, क्लाइंट से साइन करवाते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इन फॉरेंसिक ऑडिट वी डोंट डू दैट। The other major difference, in normal audit we can go as per assumption. Forensic audit, no assumption is taken. There is no assumption in forensic audit. अगर ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, limitations हो सकती हैं, जो हमें डेटा नहीं मिला, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमें डेटा नहीं मिल रहा, तो वो डेटा को हम लिमिटेशन मान के सब्जेक्ट टू दिस लिमिटेशन यस या नो, और कुछ नहीं। डिजिटल फॉरेंसिक के एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। डिजिटल फॉरेंसिक में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है। डिस्क फॉरेंसिक,
डिस्क फॉरेंसिक मीन्स आपका लैपटॉप क्लोन हो सकता है, सर्वर क्लोन हो सकता है, हार्ड डेस्कटॉप क्लोन हो सकता है। अच्छा, एक हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर नॉट वेरी मच टेक सेवी और आईटी सेवी, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कभी भी हम जब कहते हैं कि लैपटॉप फॉर्मेट होकर लिया है तो डेटा डिलीट हो चुका है सारा, आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता। लैपटॉप में डेटा हमेशा रहता है, हार्ड डिस्क में हमेशा रहता है। अब वो कैसे रहता है, अगर समझ लीजिए आपका 1 TB स्पेस का हार्ड डिस्क है, आपने 500 GB लिखा और 500 GB लिख के आपने उसे डिलीट कर दिया, फिर उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका वो 500 GB के ऊपर वो ओवरराइट हो रहा है, वो बेसिकली 500 GB से आगे जो खाली एरिया था वहां पे लिखा जा रहा है। और डेटा कब रिकवर नहीं हो सकता, डेटा किसी भी हार्ड डिस्क में से या तो हार्ड डिस्क की टूट गई पूरी मतलब अच्छे से क्रश हो गई, नहीं तो सेक्टोरियल एक्सट्रैक्शन करके भी निकाला जा सकता है डेटा, या हार्ड डिस्क 7 टाइम्स ओवरराइट हो गई, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स तो मिनिमम है, नहीं तो 6-7 टाइम्स के बाद तो कोई भी नहीं निकाल सकता। 4-5 टाइम्स अगर ओवरराइट हो गई है हार्ड डिस्क, डेटा ओवरराइट हो गया, तो आपका डेटा रिकवरेबल नहीं हो सकता। दूसरा, आपका ईमेल जो आप करते हैं उसमें आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ ट्रैक हो सकता है, सो बी वेरी केयरफुल। बैलेंस शीट्स क्लाइंट बनाएगा, आप लोग नहीं बनाएंगे, एंड अगर आप लोगों को बनाना है तो क्लाइंट साइड पे ही बनाएं, या फिर कभी भी ऑफिशियली मेल ना करें, नहीं तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है, क्लाइंट बोल सकता है। देन कम्स मोबाइल फॉरेंसिक्स। मोबाइल फॉरेंसिक में व्हाट्सएप डेटा इज रिकवरेबल। व्हाट्सएप में आप जो जेपीजी फाइल्स या पीडीएफ फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स कोई भी शेयर करते हैं, वो डिलीट होने के बाद भी रिकवरेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिकवरेबल नहीं है। व्हाट्सएप चैट भी रिकवरेबल है। बी वेरी वेरी केयरफुल, देयर इज नथिंग इन द मोबाइल विच इज नॉट रिकवरेबल। यस, देयर आर फ्यू कंडीशंस, लेकिन रिकवरेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हाई है, निकल सकता है डेटा। और जब भी आप अपने मोबाइल चेंज करें, उस मोबाइल को डेटा को पूरा क्लीन करें, नहीं तो जो बंदा दूसरा मोबाइल लेता है अगर उसमें से वो डेटा निकालना चाहे तो निकाल सकता है, डेटा कभी डिलीट नहीं होता है। एंड सेम इज द केस विद द लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर, बिकॉज ऑल दीज आर कंप्यूटर्स बेसिकली, राइट? सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर वर्क। जो एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, ईमेल फॉरेंसिक्स। ईमेल फॉरेंसिक में सारा डेटा रिकवरेबल है। अब वो कैसे है, एक क्वेश्चन आता है कि ये गूगल और याहू, जो आप जीमेल और याहू यूज करते हो, तो गूगल भी सारा डेटा बाउंड है गवर्नमेंट को देने के लिए, अगर गवर्नमेंट मांगती है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मांगती है, तो वो आपका सारा ईमेल बैकअप दे सकती है। याहू आपका सारा ईमेल बैकअप दे सकता है। अब फिर आता है जो हम लोग अपने पर्सनल ईमेल्स बना लेते हैं कि हमने अपने फर्म के नाम पे डोमेन पे बनाया, या हमने उस पे बनाया, वेबमेल पे बनाया, वो आपके लैपटॉप से, आपके सर्वर से, आपके डेस्कटॉप से रिकवरेबल है, डिलीट नहीं होता, रिकवरेबल है। सो वी शुड बी वेरी क्लियर that whatever we are doing, we have to do it very properly. Fourth thing, नेटवर्क फॉरेंसिक, मैंने केस बताया कि हम पूरा नेटवर्क चेक करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि कोई किसने हैक तो नहीं कर रखा। ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक, ऑडियो वीडियो में भी डेटा को डाल के भेजा जा सकता है। किसी दूसरे को लगा कि गाना भेजा है या कोई ऑडियो या वीडियो भेजा है, बट उसमें डेटा एनश्राइंड होता है, तो वो भी चेक किया जा सकता है। So be very careful with the work and whatever we do. तो इसमें I would add, अब थोड़ा मैं स्कोप बता देता हूँ। तो ना, what is the scope of forensic audit as per banks? क्योंकि नॉर्मली जो forensic audits देते हैं वो बैंक्स दे रहे हैं आज के दिन। अब बैंक एज अ forensic auditor हमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? पहली एक्सपेक्टेशन,
वो कहते हैं जी आप चेक करके बताइए कि क्या बोरोवर इतना कैपेबल है कि वो बैंक को रीपे कर सके पैसा। जब वो कहते हैं कैपेबल है, मतलब उसके इंडिविजुअल एसेट्स, लायबिलिटीज और उसकी और कंपनीज, मतलब उसके पास इतना पैसा है जो वो रीपे कर सकता है, तो वो बैंक हमसे एक्सपेक्ट करता है एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर। सेकंड, मनी ट्रेल एंड एंड यूज। बैंक ये भी एक्सपेक्ट करता है कि वो पैसा गया तो गया कहाँ। अच्छा, इसमें एक चीज जो बोली जाती है कि अगर एक जो नॉर्मल प्रमोटर बोलते हैं कंपनी का कि जी पैसा आया, हाँ मैंने कंपनी बिजनेस में यूज किया, मैं बाहर नहीं निकाला, इसलिए साइफन ऑफ फंड्स नहीं है। बट अगर आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लोन लिया था, अगर उस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं करा, सो इट इज साइफनिंग ऑफ फंड्स। वेरी क्लियरली इट इज साइफनिंग ऑफ फंड्स एंड इट इज मैंडेटेड बाय आरबीआई कि उसको चेक करो, ये साइफनिंग ऑफ फंड्स होगा। तीसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर। नॉर्मली क्या होता है, किसी जब भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो 30% खुद का फंडिंग करता है, 70% 80% बैंक करता है। तो चेक करो कि वो 20-30% जो प्रमोटर लेके वो भी लेके आया है, नहीं लेके आया है, वो भी एक आई वॉश था। सो वी हैव टू गिव अ रिपोर्ट एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर, वी हैव टू गिव अ रिपोर्ट ऑन दैट। सो डाइवर्जन ऑफ फंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोवर वुड बी कंस्टिट्यूट। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने डाली हैं। इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, इट इज जस्ट टू गिव एन आइडिया। यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। जिस भी चीज के लिए सैंक्शन हुआ है उस चीज के लिए यूज करना है, अगर उससे अलग किसी भी चीज के लिए यूज करें दैट इज सैफनिंग ऑफ फंड्स, डाइवर्जन ऑफ फंड्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल वर्किंग फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। Then deploying borrowed funds for purpose activities of creation of assets other than those for which the loan was sanctioned. Transferred borrowed funds to subsidiaries, group companies or other corporate by whatever modalities. Routing of funds. अच्छा, ये एक important चीज है कि अगर आपने एक बैंक से लोन लिया और आपने क्या करा, आपने कहीं पैसा नहीं लगाया, लेकिन आपने एक और अकाउंट किसी और बैंक में खोलिया विदाउट द परमिशन ऑफ दिस बैंक जहां से लोन लिया है, और आपने उसमें ट्रांजेक्शन कर दी, सो इट वुड बी सेड कि आपने डाइवर्जन ऑफ फंड करा है एंड यू वुड बी लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा नहीं आपने पैसा नहीं निकाला तब भी यू वुड बी लायबल। देन इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज बाय वे ऑफ एक्वायरिंग इक्विटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट अप्रूवल ऑफ लेंडर्स। उसने पैसा दिया तो हमें उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। Shortfall in deployment of funds vis-a-vis the amount disbursed, drawn. फिर एक हमसे पूछा जाता है एबनॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शंस। अब एबनॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शन क्या है कि जो हम पहले लेजर स्क्रूटनी करते थे, दिस इज सम काइंड ऑफ दैट कि जो नॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शन आपको नहीं लगता है, किसी ऐसी कंपनी को, अब होता क्या है कि सेल्स को इन्फ्लेट करना है, तो ईयर एंड में सेल्स उन पार्टीज को कर दी जो पार्टीज इसमें काम नहीं कर रही, तो उसको चेक कैसे कर सकते हैं। आपने उनके साइट, आपने उनकी चीजें, फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर लिया, आपने उनकी साइड पे चलेगा। अब एक कंपनी है जिससे आपने 100 करोड़ का काम करा, और अगर आप उसके ऑफिस में आपका कोई भी स्टाफ गया और आपने चेक करा तो पता था कि वो रेजिडेंशियल एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और वहां से ऑफिस चल रहा है, अगेन इट क्रिएट्स अ डाउट कि ये एक्चुअल में कंपनी है, शेल कंपनी तो नहीं है। या आपने सेल्स करी लेकिन सेल्स रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो गई। अब एक केस बताते हैं, एक एफएमसीजी कंपनी थी। अब उस कंपनी में क्या हो रहा था कि नॉर्मल सेल्स हो रही हैं, काफी अच्छी सेल्स थी, बट एट द सेम टाइम सेल्स रिटर्न्स भी बहुत हो रही थी। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसने कहा यार सेल्स रिटर्न है, नॉर्मल बिजनेस है, चलते रहने दो। लेकिन उसने फिर बाद में देखा कि ये हर महीने, जब क्वार्टरली जब भी सेल्स पर्सन को कमीशन देनी होती थी उस महीने कुछ नहीं होता था, उस अगले महीने सेल्स रिटर्न बहुत ज्यादा होती थी। तो उसने कहा यार ये चीज एक चेक करने वाली है, जस्ट एक डाउट क्रिएट हो जाता है, तो चेक करते हैं। तो उसमें चेक करने पे उन्होंने चेक करा कि यार ये कैसे सेल्स रिटर्न्स हुई हैं। चेक करने पे पता चला कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने ओनली टू गेट हिज कमीशन वो सेल्स करी और अगले महीने सेल्स रिटर्न्स हो गई। तो बेसिकली फ्रॉड हो रहा था, और उस फ्रॉड को फिर चेक करा एंड दिस फ्रॉड वाज फाउंड आउट बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अच्छा, इसके बाद एक होता है एस्क्रो एंड ट्रस्ट रिटेंशन अकाउंट।
TRA अकाउंट, उसको मॉनिटर करके उसके ऊपर रिपोर्ट मांगता है बैंक. सो दीज ऑल आर इन द स्कोप ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर कि क्या क्या बैंक चाहता है. कंसंट्रेटिंग ट्रांजेक्शंस, बैंक ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लोन उस कंपनी को दे दिया जो कंपनी सिर्फ एक ही क्लाइंट पे या एक ही कस्टमर के ऊपर रिलाय कर रही है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हाई हो जाता है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट मांगती है. मूवमेंट इन अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर रिपोर्ट मांगती है. डिटेल्स ऑफ सब्सटेंशियल डेट्स पे मांगती है, मतलब कि आपने डेट किसको दिया हुआ है, मेजर डेट किसको दिया हुआ है. फिर आपसे ये कहते हैं कि आप डेटर्स वेरीफाई करो कि एक्चुअल में डेटर्स हैं कि नहीं है, डेटर्स कंपनीज को चेक करो. और ऑनलाइन जो भी पब्लिक डोमेन में उसके डेटा मिलता है, बैलेंस शीट्स मिलते हैं, उसको चेक करो. सो दीज ऑल आर बीइंग चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय द फोरेंसिक ऑडिटर. देन फाइंडिंग डिटेल्स ऑफ एसेट्स. अब जो एसेट्स प्लेज भी कर रखी हैं वो देखो वो एसेट्स हैं भी कि नहीं है, अगर हैं तो उसकी क्या वैल्यू है. आफ्टर दैट एग्जामिनिंग चेन ऑफ ट्रांजेक्शंस pertaining to unit promoter partners to ensure genuineness of the dealings. अब वो ट्रांजेक्शंस अगर किसी को बैंक को डाउट है किसी ट्रांजेक्शन पे तो उस ट्रांजेक्शन को चेक करो, और अगर बैंक को डाउट नहीं है वो कहते कि 25 ट्रांजेक्शन चेक करो या किसी और ट्रांजेक्शन चेक करो, तो वो सब चेक करती है. उसके बाद एग्जामिनिंग स्टॉक्स, इन्वेंट्री एंड परचेज ट्रांजेक्शन इन पर्टिकुलर विद रिलेटेड पार्टीज, वो चेक करो. तो ये इन सब पॉइंट्स के ऊपर रिपोर्ट एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर हमें देना होता है. एंड आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग एडवाइस टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ फ्रॉड. एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर हमें ये भी एडवाइस देनी होती है कि फ्रॉड कैसे, ये वाला फ्रॉड कैसे रोका जा सकता है. Then we have to tell about identify the type of fraud, fraudster कौन इन्वॉल्व थे, कितने अमाउंट का लॉस बैंक को हुआ, वी हैव टू क्वांटिफाई दैट. और उसके बाद ये सारे एविडेंस हमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अगर रिक्वायर हो तो हमें खुद एज एविडेंस एज ए एक्सपर्ट विटनेस जाना होता है. So this is the scope of work of a forensic auditor in the banks. एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट बहुत होता है एंड द नोमेनक्लेचर गिवन इज ट्रांजैक्शन ऑडिट, राइट. तो ट्रांजैक्शन ऑडिट क्या कवर करता है, इसके अंदर मैं एक बार यहाँ ले आता हूँ. Yes, transaction audit, which is a very big scope for chartered accountants. We have to report under section 43, 45, 50, 66 of the Insolvency Bankruptcy Code of India. अब ये sections क्या कहते हैं? 43, section 43 says privileged transactions which are being done in the last 2 years. Now what is privileged transactions? कि कहीं पे किसी क्रेडिटर को या किसी को आपने प्रिविलेज दे दी तो उन ट्रांजैक्शन का आप रिपोर्ट करो. 45 कहते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करो कि आपने एसेट्स उनके मार्केट वैल्यू पे ना बेच के कम वैल्यू पे बेच दिए. 50 है कि आप एक्सटॉर्शनरी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की लोन कंपनी ने दिखा दिया कि लोन लिया है अपनी किसी और कंपनी से, जो सिस्टर कंपनी ने फ्रेंड से लोन लिया और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, तो वो एक्सटॉर्शनरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कवर हो जाता है. And 66 is fraud transactions. So it is called transaction audit, but it covers all the avenues of forensic audit. जी राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? कोई नहीं सर, आप एक बार डेलिब्रेशन कंप्लीट कर लो ना, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे जो होंगे. तो डन सर. तो इंसॉल्वेंसी का एक फील्ड है जहाँ पे हमसे मांगा जाता है. देन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉरेंसिक ऑडिट का काम देता है. उसमें मेजर काम होता है मनी ट्रेल बनाना, फंड ट्रेल, जहाँ पे वो कहते हैं जी ये पैसा, अब एक एग्जांपल लेता हूँ, आई कैन नॉट नेम द कंपनी, बट एक कंपनी है रियल एस्टेट कंपनी. उस कंपनी का उन्होंने कहा यार इन्वेस्टर्स ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया और अब आप हमें ये पता लगा के बताओ कि वो पैसा कंपनी कहाँ ले गई. So we have to make the whole trail.
एक तो हमें ये स्कोप में करना होता है, दूसरा काम हमें करना होता है कि बैलेंस शीट एसेस करके ये बताना कि किस किस तरीके से उसने बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करा। सो दो स्कोप होते हैं, बेसिक दो स्कोप होते हैं इन द इकोनॉमिक ऑफेंस ईओडब्ल्यू केसेस। नाउ फॉरेंसिक ऑडिटर बनने में, फॉरेंसिक अकाउंटेंट बनने में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? See, in this I have not written about FAFD because that is the basic course which every chartered accountant has to do when if you want to enter the forensic field. So that is the starting step for the chartered accountant. उसके ऊपर वो क्या क्या कर सकते हैं मैंने वो लिखा है। एक तो आपका ट्रेनिंग टेस्टिंग है which is normal. Experience, there is no substitute to experience. So chartered accountants who are experienced chartered accountants तो उनके लिए forensic और easy हो जाता है, या फ्रॉड निकालना और इजी हो जाता है। एंड व्हाट एक्रेडिटेशंस वी कैन टेक वर्ल्ड वाइड, वन इज CFIP सर्टिफाइड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल, हम ये बन सकते हैं। CFF कर सकते हैं, सर्टिफाइड इन फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स। CFE कर सकते हैं, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर। CFAP कर सकते हैं, सर्टिफाइड फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल। या कुछ और कोर्सेज हैं जो गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी आज के दिन देना स्टार्ट हो चुकी है। सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। These are few of the courses which we can do. These 4 courses which I have told you is from US, और एक गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज कराती है जो हम कर सकते हैं। गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके हम चेक करके आगे बढ़ सकते हैं उसमें। नाउ स्कोप, आज इंसॉल्वेंसी में अभी ठीक है, अभी 6 महीने के लिए इंसॉल्वेंसी केसेस रुक गए हैं, लेकिन फिर स्टार्ट होंगे। सो insolvency in every case forensic audit transaction audit is mandatory. So as a chartered accountant बहुत स्कोप है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, ठीक है? बेसिकली कोई क्राइटेरिया नहीं है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसी को भी फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है, बट क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के केस में तो मैक्सिमम टाइम पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बैंक्स होते हैं, तो बैंक्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कर लीजिए, क्या कहते हैं आपका IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है उसके एम्पैनल CA फर्म्स को लीजिए। सो दैट इज द ओनली क्राइटेरिया इन फॉरेंसिक फील्ड। और IBA की जो एम्पैनलमेंट है वो हर 2 साल के लिए होती है, और वो अभी सितंबर में फिर खुलने वाली है इस साल। सो यू कैन गो अहेड इफ यू वांट टू एंटर दिस फील्ड एंड यू कैन गेट दैट एम्पैनलमेंट इन सितंबर और अक्टूबर। एक बार एम्पैनलमेंट हो जाती है देन यू कैन गेट बिग केसेस आल्सो, बट छोटे केसेस के लिए उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू आर हैविंग अ गुड रैपो विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यू कैन गेट दिस वर्क। फिर उसके बाद शेल कंपनीज। अब जो शेल कंपनीज हैं, अब इस शेल कंपनीज में सेबी के पास कई लाख शेल कंपनीज हैं जो सेबी फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहता है। सो देयर आर few lakh assignments which are to be executed, and these all would be done by the chartered accountants only. So this is just the scope we as a chartered accountant in forensic field have. Then RERA के अंदर forensic audit start हो चुके हैं. So 60,000 to 70,000 projects are registered under RERA as of today, and इसके अंदर जब भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, if in fact 90% of the real estate projects are not completed on time, so RERA is getting the forensic audit done of that project. अब उसमें वो क्या चेक करते हैं, वो कहते हैं कि 70% of the total amount received either by a loan or either by a booking amount, वो पैसा आपका उस प्रोजेक्ट में यूज होना चाहिए. 30% आप यूज कर सकते हो लोन को रीपे करने के लिए या किसी और चीज के लिए. So that is being verified and checked by forensic auditor. So this work has already started. RERA में forensic audit start हो चुका है, and there is no criteria. कोई भी कर सकता है. अभी RERA कोई क्राइटेरिया लेके नहीं आया है. Insurance, there are few lakh cases which are to be investigated, which can be investigated by a forensic auditor. ये फील्ड अभी ओपन होना स्टार्ट हो रहा है. इनफैक्ट ओपन पूरा अभी हुआ भी नहीं है.
and yes, that is the avenues we can think of as a forensic auditor or as a chartered accountant in forensic field. जी मुकुल जी। सर ये बेसिक दो चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि हम लोग, जो मैंने स्टार्टिंग में रैंडम वाउचिंग की बात करी थी, जी जी जी। तो रैंडम वाउचिंग में ये दो थ्योरम्स हैं जो नॉर्मल ऑडिट में we are using for last now 5-6 years and we are getting very good results in normal audit. I'm not saying about forensic audit. These are theorems for forensic also, but can be used in normal audit. Benford's law, rules algorithm. ये दो थ्योरम्स हम नॉर्मल रैंडम वाउचिंग सिलेक्ट करने के लिए, वाउचर सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आज के दिन हम क्या करते हैं, आज के दिन हम रैंडम वाउचिंग जब करते हैं, हम करते हैं यार एक काम करते हैं, क्वार्टरली सारे वाउचर्स निकाल लेते हैं, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर या और कोई महीना हमें ध्यान आ जाए तो वो महीना, बट दैट वी कैन नॉट से रैंडम, वी कैन नॉट कैटेगराइज दैट एज रैंडम। इन रैंडम वाउचिंग बेसिकली बेनफोर्ड्स लॉ अगर हम यूज करते हैं, व्हाट इज बेनफोर्ड्स लॉ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बेनफोर्ड एक बंदे थे जिन्होंने ये लॉ बनाया बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। ही सेड दैट आपका जो सेट ऑफ डेटा है, उस डेटा में एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर इतने परसेंटेज ऑफ द टाइम्स आएगा। 30 टाइम्स वन नंबर आएगा, 17 टाइम्स टू नंबर आएगा। अब ये नंबर क्या होते हैं, ये आपके डेटा के लेफ्ट मोस्ट नंबर, लेफ्ट मोस्ट नंबर इज वी टेक द लेफ्ट मोस्ट नंबर, सो दैट इज वी कॉल इज वन नंबर, ये फर्स्ट नंबर है। और सेम वे में जब हम वाउचिंग करते हैं और हमें समझ लीजिए 10 वाउचर निकालने हैं, तो हम इस पर्टिकुलर थ्योरम को यूज करके वो 10 वाउचर या 20 वाउचर निकाल सकते हैं। उसका ऑडिट ट्रेल भी पूरा बन गया एंड वी कैन प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो कि हमने उस वाउचर को कैसे सिलेक्ट करा, कैसे निकाला, ताकि कल के दिन हमें कोई क्वेश्चन ना कर सके। नहीं तो नॉर्मल रैंडम वाउचिंग में क्या होता है, आज मैं हूं या जगजीत जी या राजेश जी है, अब सबको बताइए जी राजेश जी जाएंगे तो वो दिसंबर के वाउचर निकलवाएंगे, वो मार्च के निकलवाएंगे, वो आपके अक्टूबर के निकलवाएंगे या कोई और बड़े वाउचर निकलवाएंगे। तो जो टेबल के दूसरे बंदा बैठा है उसे पता है कि राजेश जी क्या निकलवाएंगे, तो इसलिए बेटर है वो वाला वाउचर कुछ ना करना, बाकी वाउचर्स में फ्रॉड कर देना। लेकिन अगर हम लोग ये बेनफोर्ड्स लॉ यूज करते हैं, थ्योरम यूज करते हैं जो हम एक्सेल पे कैलकुलेट करके कर सकते हैं, नोबडी कैन जज कि हम कौन सा वाउचर निकलवा सकते हैं, तो वो वाउचर हम निकाल सकते हैं। और उस वाउचर में अगर, और इसका वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेशियो 70% से 75% है। इंडियन माइंड्स का कोई लिमिटेशंस नहीं है, लिमिट नहीं है, तो हम कहते हैं कि 50% इंडिया में भी ये सक्सेसफुल है और 50% बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है। सो वी कैन डू द रैंडम वाउचिंग, यूज दिस पर्टिकुलर लॉ। एंड इसके साथ एक आता है रूल्स एल्गोरिथम, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड, कि अगर किसी को क्वेश्चंस हैं देन यस आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। सर मैं कुछ चैट में क्वेश्चन है सर, मैं पढ़ देता हूं, जरा आप रिप्लाई कर दें शॉर्ट में। इफ एन इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉई finds fraud, does audit head needs to report to central government? Yes. Okay. बिल्कुल 100% सर। If any employee addicted to drink or smoking and then they conduct fraud, under which category they come? सर ड्रिंक एंड स्मोकिंग से कोई लिंक नहीं है। अगर किसी ने भी फ्रॉड कंडक्ट करा है किसी एम्प्लॉय ने, तो 447 में कवर हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉड बड़ा एम्प्लॉय कर पाएगा बड़े अमाउंट का, और थोड़े छोटे मोटे अमाउंट का तो नॉर्मल कंपनी उसके अगेंस्ट एफआईआर करा के आगे बढ़ सकती है। सर रिट्रीवल, प्लीज एक्सप्लेन द रिट्रीवल प्रोसेस ऑफ डाटा फ्रॉम कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क एटसेट्रा। इन शॉर्ट में कर दो सर, कुछ बता दो। सर बेसिकली क्या होता है
that there are few hardwares and softwares available. Hardware specifically Tableau करके एक कंपनी है, आप उसे चेक कर सकते हैं. तो Tableau इज यूएस बेस्ड कंपनी, उसके हार्डवेयर आते हैं जिसको हम कंप्यूटर से लगाते हैं और कंप्यूटर का सारा डेटा इमेज बन के हम निकाल लेते हैं. मतलब हार्ड डिस्क आप ये समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर आपने साबुन रखा और साबुन के ऊपर उसकी पूरा इम्प्रिंट आ गया और आपने उसको निकाल लिया, तो पूरी की पूरी इमेज एज इट इज आ जाती है. देयर इज, उसमें कुछ भी नहीं बचता. हाँ, अगर 4 to 5 टाइम्स वो ओवरराइट हो चुके हार्ड डिस्क, ओवरराइट का मैं पहले बता चुका कि ओवरराइट पूरा 4 बार पूरी 1 TB है तो 1 TB की पूरी कंप्लीट होके उसके ऊपर ओवरराइट हो चुकी है, तो डेटा निकालना मुश्किल है. अदरवाइज डेटा इज इजिली रिकवरेबल. Is there any specific condition for empanel with IBA? सर आईबीए के लिए अभी तक जो उन्होंने कंडीशंस रखी हैं पुरानी मैं बता सकता हूँ. इट इज देयर शुड बी 3 एटलीस्ट 3 FAFD क्वालिफाइड पर्सन्स इन द फर्म एंड, और बाकी और छोटी मोटी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो दिखाओगे, यू कैन गेट एम्पैनल्ड. How RERA allot forensic audit? सर अभी तक रेरा ने कोई एम्पैनलमेंट करी नहीं है. इट गोज एज पर द इंडियन ट्रेडिशन. यू हैव द लिंक एंड यू गेट द ऑडिट. Okay. Sir, from where should we do the forensic course? Sir, forensic course can be first and the foremost is the FAFD course of our institute, post qualification course. उसके बाद आप CFAP, CFIP, CFE ये सब कुछ आप गूगल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द डेटा. और आप वहाँ से ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं. यू कैन डू एंड गिव द एग्जाम ऑन द लैपटॉप सिटिंग इन योर होम. Next question, does CCTV footage is necessary to prove in court or Excel data in good to go for recovery of amount? सर अगर मैंने अमाउंट ही प्रूव कर दिया, सर सीसीटीवी फुटेज चाहिए जहाँ पे कैश की चोरी हो गई हो. हम लोग सीसीटीवी फुटेज किस लिए चाहिए? और अगर मुझे किसी चीज को प्रूव करना है तो मुझे सीसीटीवी फुटेज की नहीं, मैं आईपी एड्रेस से प्रूव कर दूंगा. सीसीटीवी फुटेज मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी. मैं एक्सेल से, डेटा से और आईपी एड्रेस ट्रैकिंग, आईपी एड्रेस मैं प्रूव कर दूंगा कि कहां से हुआ, किसने करा. Sir, if hard drive has crushed, how can we get the data retrieved? See, there are many retrieval companies. नेहरू प्लेस में है, वो सब निकाल सकती हैं. जो नेहरू प्लेस में निकालती हैं वो तो आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से निकालती हैं. देयर आर फ्यू कंपनीज लाइक स्टेलर जो प्रॉपर तरीके से निकाल के आपको डेटा दे देती है, तो इट इज इजिली रिट्रीवेबल. Rakesh ji, Bhargav Saab, you raise the hand. Please ask your question. Rakesh ji, please unmute yourself and ask the question. Bhargav Saab. मुझे लगता है कि शायद गलती से लग गया. हाँ, गलती से लग गया. Raj ji, you have the question. Please ask. Raj ji, Yes, unmute yourself. yes, sir. Yes, sir. Sir, I have one query. Yes. Just a second. Yeah. Sir, I want to ask one question. In case of Benford law, actual percentage of data are different than percentage of Benford law. In that case, how to do sample selection and what additional procedures to be done by the auditor in such cases? ठीक है सर, इसका मैं एक एक्सेल पे दिखा भी देता हूँ. मैं अभी दिखा Yes, sir. दूंगा. Thank अगर you कोई so और much. क्वेश्चन है तो मैं पहले उसको ले लेते हैं, उसको मैं दिखा दूंगा. हाँ, मैं राकेश भार्गव जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वंस अगेन कि भाई साहब प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. राकेश जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. चलिए जी, राज जी का ही दे दीजिए, फिर देख लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे. मैं ये शीट दिखा रहा हूँ. एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए.
सर सबको एक्सेल शीट दिख रही है? हाँ जी सर। मैं अब इसमें दिखा देता हूँ, देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, एक सेकंड। सर ये देखिए, ये मैंने डेटा जो लिया है, ये डेटा बेसिकली आपका वेंडर इनवॉइसेस। अब मैंने इसमें क्या क्या कॉलम लिया है, वेंडर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, अमाउंट, चेक नंबर, चेक डेट। मैं बेसिकली परचेज का वाउचिंग करना चाहता हूँ, परचेज की, ठीक है। तो इसमें अगर मैं टोटल वाउचिंग करूं तो ये मेरे 997 वाउचर्स होंगे, 997 वाउचर्स। एक छोटा सैंपल ही है। अब इसमें हम बेनिफिट्स लॉ कैसे लगा सकते हैं? ये आपका अमाउंट से सर, देखिए इसमें मैं इनवॉइस नंबर को नहीं ले रहा, अमाउंट्स को ले रहा हूँ। ये सारे अमाउंट्स हैं। इसका मैंने क्या करा, मैंने एक एक्सेल में इक्वल टू लेफ्ट, इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो उठा लिया। फर्स्ट डिजिट मेरे सबके आ गए, फर्स्ट डिजिट इसके अंदर, ये कॉलम एच में फर्स्ट डिजिट सबके आ गए हैं। तो 1 2 7 सारे फर्स्ट डिजिट आ गए। मैंने कॉलम आई में फर्स्ट 2 डिजिट उठा लिए, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, इक्वल टू लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेना अमाउंट वाला और उसको कॉमा करके 2 कर देना है, तो मेरे फर्स्ट 2 डिजिट आ गए। अब आप ये देखिए, ये मैंने बेनिफिट एनालिसिस लगाई। अब इसमें क्या होता है, ये सारी वो परसेंटेज है जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाई थी। एज पर बेनिफिट लॉ 1 डिजिट 30% ऑफ द टाइम्स आना चाहिए, 2 डिजिट 17% ऑफ द टाइम्स आना चाहिए, राइट। अब राजी आपका क्वेश्चन था कि एक्चुअल अगर डिफरेंट हो, अब ये एक्चुअल है, मेरा 997 मेरा टोटल सेट है, तो उसमें से 191 मुझे 1 नंबर 191 टाइम्स आया है, 2 नंबर 155 टाइम्स आया है। तो ये परसेंटेज आई 19%, 15%, 11%, 10%, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं इसको मैं और कैसे चेक करूं, दैट इज द क्वेश्चन राज जी। यस सर, यस सर, ठीक है यस सर। राज जी, अब हम इसको पाइवट चार्ट बनाते हैं। ये मैंने इसका पाइवट चार्ट बनाया है, ये देखिए आपको पाइवट चार्ट दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसमें पाइवट चार्ट में मैंने क्या करा, अगर आप देखें तो इस पाइवट चार्ट में ये जो ब्लू आ रहा है, ये सारा आ रहा है जो मेरे एक्चुअल नंबर्स है। अब मैं इसमें बेनिफिट्स लॉ भी उठा लाता हूं। अब जो रेड है वो हमारे बेनिफिट्स लॉ है, बेनिफिट्स लॉ के हिसाब से परसेंटेज है। जो ब्लू है वो हमारी एक्चुअल परसेंटेज है, राइट। अब यस सर। अगर आप बेनिफिट्स लॉ को देखेंगे तो उसका डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको दिख रहा है कि 1 2 3 डिक्रीज जा रहा है सारा। तो आपका एक क्वेश्चन था कि इसमें मेरा अगर सारे परसेंटेजेस बेनिफिट लॉ से अलग आ रहे हैं तो मैं कैसे करूंगा, कैसे वाउचिंग करूंगा? यस सर। तो इसमें आप ये देखिए कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन जो मेरा एक्चुअल है, जो मेरा एक्चुअल नंबर्स हैं, वो मेरा डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। उसमें मेरा जो 4 5 और 7 है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड को तोड़ रहा है। 4 5 7 में मेरा बेनिफिट लॉ वाला ट्रेंड नहीं आ रहा है, राइट। तो Yes, मैंने 4 5 7 को उठा लिया। अगर मैं 4 5 7 को उठाता हूं तो 997 में से मेरा 4 एक सेकेंड, 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो मेरा जो सेट बना 328 का बना। मतलब मैंने 997 में से 328 वाउचर्स चेक करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी फ्रॉड निकालने की नॉर्मल में ज्यादा है। अगर फ्रॉड है तो इन 328 में होगा, लेकिन 328 भी बहुत बड़ा नंबर है। मैं 328 वाउचर तो चेक करूंगा नहीं 997 वाउचर के लिए। तो मैं उसके सेकंड उस पे जाता हूं, फिर मैं जाता हूं फर्स्ट 2 डिजिट के। इसमें भी बेनिफिट्स ने ये सारी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। ये जो 4% है, 3% है, ये 99 तक परसेंटेजेस दी हुई हैं। उस पे मैंने एक्चुअल को प्लॉट करा। जो अगर आप देखेंगे कॉलम आई में मैंने एक्चुअल फर्स्ट 2 डिजिट उठा रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल को प्लॉट करा और सेम वे एक्चुअल की परसेंटेजेस निकाली और सेम वे उसकी भी शीट बना दी। मैंने एक्चुअल की शीट बनाई थी, ठीक है। मतलब बेसिकली आप एक्चुअल की भी शीट बना देंगे और वहां से आप अपने परसेंटेज को, अपने उसको कम कर लेंगे। So that way you can move forward and you can do the actual vouching based on Benford's law. Okay, sir. One more query with regards to this. If in the given details only 2 or 3, for example, 1 or 3 numbers details are having difference,
and others having okay. So in that case, what to do? तो 1-3 को उठा लीजिए सर. Okay, so in that case, we need to select more of the samples from such kind of numbers, right? सर बेसिकली बेनफोर्ड लॉ क्या कहता है कि ये परसेंटेज होनी चाहिए. अगर ये परसेंटेज किसी पर्टिकुलर नंबर नहीं है तो फ्रॉड उस पर्टिकुलर नंबर वाले सेट में होने के चांसेस ज्यादा है. तो उस सेट को उठा लो. ठीक है भाई. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, Mukul ji. And over to Rajiv Kohli ji for vote of thanks, sir. Mukulji, thank you very much for such a nice deliberation. Actually, what is happening is that the white collar crime is keeping on increasing. We started with WorldCom, Enron, Satyam here, and more things are taking place. So, and then we need this forensic audit, because anything, the inferences you have to draw, because the data mining is there. But once the white collar brain starts working, then the fraud is very, very there, and we Indians are very, very innovative. But yes, very nice. And we are supposed to give a very fundamental thing, a very conclusive report when you're doing a forensic audit assignment. Then the nature is why the fraud happens, the pressure, opportunity, rationalization was there. So people are there. Like one person asked a question कि sir वो alcohol पाता है तो is living beyond his mean. So pressure उसके ऊपर financial pressure बढ़ गया उसके ऊपर. And then we have to look at all the components. Everything is going to become very tech based with this digital world. The digital crime is going to keep on increasing. And in drawing inferences from, we have to do lots of data mining skills for this. इतना सारा data होगा उसको कैसे करना, inferences we have to withdraw. And sir, banks का तो बिल्कुल रोल है, because बैंक पैसे देते हैं और जब पैसे लेने जाते हैं तो already लगा वो सारी चीजें गिरवी होती हैं और आदमी के पास उसके टाइटल भी नहीं होती, वो बैंक को दी होती है. And very nice illustration on Benford laws, very useful for all the young chartered accountants, because on the Excel they can do, and the scope and extent of their checking will fall will be reduced to a very great extent. And they're doing very thing which is very logical rather than doing on their whims and fancies. The old people like us go by their experience, but the person knows कि सर ये वाला चेक ना तो 1 लाख से ऊपर वाली करनी है तो उसके अंदर फ्रॉड ही नहीं होगा, छोटे छोटे करके आपका गन पाउडर इफेक्ट आ जाएगा. Sir, thank you very much for this very nice deliberation once again. सर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, एक चीज मैं मिस कर गया. जी. जितने हम ईमेल्स हमें रिसीव होते हैं जी, बी वेरी केयरफुल. अगर अननोन सेंडर है तो ईमेल मत खोलिए, आपका सारा डेटा हैक हो जाएगा अगर कोई हैकर करना चाहे तो. अननोन बंदे से ईमेल मत खोलिए. ईमेल आईडी दोबारा चेक कीजिए. एक अभी फ्रॉड हुआ था ओएनजीसी में, ईमेल आया ognc.com से. किसी ने ओजीएनसी को ध्यान नहीं दिया, ओएनजीसी देखा और पेमेंट कर दी और वो फ्रॉड में चला गया. ओ माय गॉड. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. सी योर ईमेल्स, नॉट ओपन एनी ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अदरवाइज यू आर मिटिगेटिंग योर डेटा. सर सेम केस ना पीएम केयर एंड पीएम केयर्स में हो गया. बेस्ट एग्जांपल सर. Anyway, thank you boss Mukul ji. Thank you once again, and thank you each and everyone, sir. Thank you.